پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پرائڈ آف ایجوکیشن کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ جماعت تیسری مضمون ریاضی کا پہلا سبق ہندسی شکلوں کا تعارف۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو اس سبق میں سب سے پہلے اعادہ دیا ہوا ہے۔ اعادے میں چوکور، مثلث اور دائرہ دیے ہوئے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیں گے کہ چوکور کسے کہتے ہیں۔ چار ضلعوں والی شکل کو یا چار کونوں والی شکل کو چوکور کہتے ہیں، جیسے کہ یہ چوکور۔ ابھی چوکور کی دیکھیے یہ لمبائی الگ ہے، یہ لمبائی الگ ہے، اس کی لمبائی الگ ہے، اس کے چار کونے ایک جیسے ہے کہ نہیں، تو یہ کیا ہے، چوکور ہے۔ لیکن یہاں پر اس چوکور کی دیکھیے چاروں ضلع کیسے ہیں، مساوی لمبائی کے ہیں۔ اس چوکور کی چاروں ضلع کیسے ہیں، مساوی لمبائی کے ہیں، تو اس چوکور کو کہتے ہیں مربع۔ جس چوکور کے چاروں ضلع مساوی لمبائی کے ہو اس چوکور کو کہتے ہیں مربع۔ اور جس چوکور کے دو ضلع مساوی لمبائی کے ہو، جیسے کہ یہ دو ضلع ایک جیسی لمبائی کے اور یہ اوپر اور نیچے کے مساوی لمبائی کے، تو اس چوکور کو ہم کہیں گے مستطیل۔ اور جس کے تین ضلع مساوی لمبائی کے ہو اسے مثلث، اور کوئی بھی گول چیز کو ریاضی زبان میں کیا کہیں گے، دائرہ۔ تو آپ کو یہ سمجھ گیا ہوگا، چوکور، مربع، مستطیل، مثلث اور دائرہ، یہ ہندسی شکلیں ہیں۔ اب اس کو دیکھ کر ہم نیچے کی سرگرمی کرتے ہیں۔ نیچے کی شکلیں دیکھو، ان میں کی ہندسی شکلیں پہچانو، انہیں بناؤ اور ان کے نام لکھو۔ اب یہاں پر آپ کو تصویریں دی ہوئی ہے۔ ابھی تصویریں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ سیکھ لیا کہ چوکور ہے، مستطیل، مربع، مثلث اور دائرہ۔ اب یہ شکلیں ان میں سے کون سی ہے، مربع ہے، مستطیل ہے، دائرہ ہے، تو آپ کو پہچاننا ہے، وہ شکل بنانا ہے اور اس کے نام لکھنا ہے۔ اب جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے ٹی وی کی تصویر دی ہوئی ہے۔ اب ٹی وی کیا ہے، ٹی وی چوکور ہے کیونکہ اس کے چار کونے ہیں، لیکن چوکور میں بھی دیکھیے اوپر کے دو ضلع اور مساوی ایک جیسی لمبائی کے ہیں، اور یہ آمنے سامنے کے مساوی لمبائی کے ہیں۔ تو ہم نے دیکھے کہ جس چوکور کے دو ضلع مساوی لمبائی کے ہو اس چوکور کو ہم کیا کہتے ہیں، مستطیل۔ تو یہاں پر مستطیل بنا ہوا بھی ہے اور یہاں پر شکل کا نام مستطیل لکھا ہوا بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم کو آگے دیکھنا ہے۔ اب یہاں پر کیا بنا ہوا ہے، کیرم۔ اب کیرم بھی کیا ہے، چوکور ہے، لیکن اس کے چوکور کے چاروں ضلع کیسے، ایک جیسی لمبائی کے ہیں۔ تو جس چوکور کے چاروں ضلع ایک جیسی لمبائی کے ہو اس چوکور کو کیا کہتے ہیں، مربع۔ تو ہم یہاں پر شکل میں مربع کی شکل بنا لیں گے اور شکل کا نام نیچے لکھیں گے، مربع، اس طریقے سے۔ اب سینڈوچ تین کونی ہے یعنی کہ مثلث ہے۔ یہاں پر سینڈوچ کی تصویر بنا لیں گے مثلث نما اور شکل کا نام مثلث۔ موبائل فون دیکھیے یہ دو ضلع ایک جیسی لمبائی کے ہیں، لمبائی زیادہ ہے اس کی اور یہ دو کی لمبائی کم ہے یعنی کہ مستطیل۔ دو ضلع مساوی لمبائی کے ہیں، تو ہم یہاں بنا لیں گے ہم مستطیل اور شکل کا نام مستطیل، اس طریقے سے۔ اور کوئی بھی گول چیز کو ریاضی زبان میں کیا کہتے ہیں، دائرہ۔ تو یہ کنگن کیا ہے، دائرہ نما، شکل کا نام دائرہ، مثلث، مستطیل، اس طریقے سے۔ اوپر کی تصویر میں مثلث، دائرے، چوکور پہچانو۔ مثلثوں میں لال، چوکور میں نیلا اور دائروں میں پیلا رنگ بھرو۔ اب ہم نے ہندسی شکلیں پہچان لی، سمجھ لیے کہ چوکور کون سا ہے، مثلث کون سا ہے، دائرہ کون سا ہے، تب ہم کو اس میں پہچاننا ہے۔ تو سب سے پہلے مثلث، تین ضلع والی شکل کو مثلث کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کو مثلث دکھائی دے وہاں پر آپ کو لال رنگ بھرنا ہے، اس طریقے سے اچھے سے کریے آپ لوگ۔ ہاں دیکھیے یہ ایک مثلث ہے، اس میں لال رنگ بھریے، یہ ایک ہے اس میں لال رنگ بھریے، اس طریقے سے۔ دائرے میں پیلا رنگ، اب دائرہ یعنی کہ گول، دائرے میں پیلا،
ये दायरा है, ये कितने दायरे, तो सब में पीला रंग भरना है। और चौकोर में नीला रंग, चौकोर यानी 4, उसमें मुरब्बा भी आ जाएंगे और मुस्ततिल भी आ जाएंगे। ये चौकोर, उसमें नीला रंग। तो इस तरीके से आप लोग अपनी दरसी किताब में इस तरीके से सब सरगर्मी को हल कीजिए और अपने वालिदैन को, अपने उस्ताद को दिखाइए इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं अब किनारे और कोने। बर्फ़ी का एक टुकड़ा देखो, बर्फ़ी का टुकड़ा चौकोर है, चौकोर के 4 किनारे और 4 कोने होते हैं। अभी हमने देख लिया कि चौकोर यानी कि जिसके 4, बर्फ़ी भी क्या है, 4 कोनों वाली चौकोर है। तो ये चौकोर के 1 2 3 4, यही क्या है, इसके 4 कोने हैं और यही इसके 4 किनारे हैं इस बर्फ़ी के, जैसे कि 1 2 3 4, बर्फ़ी के 4 कोने और 4 किनारे हैं। मेज़ की ऊपरी सतह को गौर से देखो। अब ये मेज़ है, इसकी ऊपरी सतह को हमको गौर से देखना है और ये सवालों के जवाब हमको देना है। मेज़ की ऊपरी सतह की कितने किनारे हैं? अभी सतह के कितने किनारे कितने हैं? 1 2 3 4, किनारे कितने हैं? 4। मेज़ की ऊपरी सतह के कोने कितने हैं? जो किनारे हैं वही कोने हैं, तो कोने भी कितने रहेंगे? 4। मेज़ की ऊपरी सतह की शक्ल कौन सी है? अभी शक्ल कौन सी है? देखिए, ये 2 की लंबाई एक जैसी है और ये 2 की लंबाई एक जैसी है, यानी चौकोर की कौन सी शक्ल हो गई है? मुस्ततिल। चौकोर की मुस्ततिल शक्ल हो गई इस तरीके से। तो आप लोग इसको अपनी दरसी किताब में हल कीजिए। मुस्ततिल। अब आपको एक कागज़ लेना है, अब उसमें इस तरीके से एक मुस्ततिल नुमा कागज़ लेना है, उसको इस तरीके से तह करके देखना है कि उसके कोने और किनारे आपस में जुड़ते हैं या नहीं, और इस तरीके से। तो आप ये सरगर्मी अपने उस्ताद के साथ हल कीजिए एक रंगीन कागज़ की मदद से। उसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है मुरब्बा। मुरब्बे के लिए हमको एक क्या लिया हुआ है यहाँ पर? रुमाल। रुमाल को गौर से देखो, ये मुरब्बा है तो ये रुमाल है, ये रुमाल मुरब्बा नुमा, यानी कि इसके चारों ज़िले कैसे हैं? एक जैसी लंबाई के हैं। तो इस रुमाल को भी हमें जिस तरह की दरसी किताब में दिखाया गया है इस तरीके से एक कोनों को, किनारों को जोड़कर देखना है कि आपस में जुड़ते हैं कि नहीं। तो आप लोग भी ये खुद से कीजिए। मुसल्लस। मुसल्लस के किनारे कितने हैं और कोने कितने हैं? अब ये मुसल्लस है, मुसल्लस हमने देखे 3 ज़िले वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुसल्लस कहते हैं। तो ये 1 2 3, यही किनारे और यही कोने। तो मुसल्लस के किनारे कितने हैं? 3 हैं और कोने भी कितने हैं? 3 हैं। अब ये देखते हैं, मंदरजल जदवल मुकम्मिल करो। शक्ल, अब यहाँ पर आपको शक्लें दी हुई है, आपको शक्ल का नाम लिखना है, किनारों की तादाद और कोनों की तादाद लिखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 ज़िलों वाली शक्ल दी हुई है, यानी कि ये मुरब्बा है क्या? नहीं। मुस्ततिल है क्या? नहीं। तो हम इसे क्या लिख लेंगे? चौकोर। शक्ल का नाम चौकोर। इसके किनारों की तादाद कितनी है? 1 2 3 4, कितनी है? 4, और जो किनारे हैं वही कोने हैं, तो कोने भी 4। अभी शक्ल कौन सी? देखिए, ये 1 2 ज़िले कैसे, इसकी लंबाई ज़्यादा है और इसकी लंबाई कम है, तो चौकोर की कौन सी शक्ल हो गई है? मुस्ततिल। 2 2 ज़िले मसावी लंबाई के हैं, मुस्ततिल। मुस्ततिल की कोने 1 2 3 4, कोने भी 4 और किनारे भी 4। मुरब्बा। इस चौकोर के चारों ज़िले कैसे हैं? मसावी लंबाई के, एक जैसी लंबाई के, तो इस चौकोर की कौन सी शक्ल हो गई? शक्ल का नाम मुरब्बा। मुरब्बे की भी कोने कितने हैं? 1 2 3 4, कोने भी 4 और किनारे भी 4। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है? मुसल्लस। मुसल्लस 3 ज़िले वाली शक्ल को क्या कहते हैं? मुसल्लस। तो मुसल्लस शक्ल का नाम हम क्या लिख देंगे? मुसल्लस। और किनारे 1 2 3, किनारे 3 और कोने भी 3। गोल यानी कि दायरा। दायरे में कोई किनारे है क्या? नहीं। कोने है क्या? नहीं, क्योंकि गोल है। तो इस तरह आप इस सरगर्मी को अपनी दरसी किताब में हल कीजिए। आगे देखते हैं।
5 टुकड़ों का 10 ग्राम बनाने का तरीका। अभी आपको एक ऐसे क्या करना है, एक ऐसा मुरब्बा नुमा कागज़ लेना है और उस कागज़ के इस तरीके से नुक्ते लगाकर उसे 4 हिस्सों में मुरब्बा शक्ल का एक कागज़ लो। इस कागज़ की तहकारी करके मुरब्बे के वस्त मालूम करो। इसी तरह चारों किनारे के वस्ती नुक्तों पर निशान लगाओ। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से लकीरें खींचकर मुरब्बे के वस्त और किनारों के वस्ती नुक्तों को जोड़ो। अब हमको क्या करना है, एक कागज़ लेना है। कागज़ का हमको वस्ती नुक्ता मालूम करने के लिए मुरब्बा नुमा इस तरीके से हमें उस पर निशान लगाना है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये 2 किनारों को जोड़ना है, ये 2 किनारों को, ये 2 को इस तरीके से। तो हमको ये पूरा एक मुसल्लस, एक ये पूरा एक मिलाकर यहाँ कर, ये 2, ये पूरा एक मुसल्लस हो गया हासिल, 3, ये 4 और ये 5, इस तरीके से। और फिर इसको इस तरीके से कट करेंगे आप, तो आपको इस तरह टुकड़े मिल जाएंगे। तो ये टुकड़े आपको इनसे शक्लों की मिल गए, तो आपको ये देखकर यहाँ के सवालों के जवाब देना है। जैसे कि सवाल नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, तुम्हारे 10 ग्राम में कितने मुसल्लस है। मुसल्लस यानी कि 3 ज़िले वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। अब इसमें कितने मुसल्लस है, 1, 2, 3। कितने मुसल्लस है, 3। क्या तमाम मुसल्लस एक जैसे है, यकसा है, यानी कि एक जैसे है। अब सब मुसल्लस एक जैसे है क्या, कोई बड़े छोटे है क्या, हाँ, तो यकसा है क्या, नहीं, बड़े छोटे हैं। क्या 2 मुसल्लसों को जोड़कर एक मुरब्बा बनाया जा सकता है। अब जैसे देखिए ये मुसल्लस और ये एक जैसी लंबाई का है, तो जैसे दोनों को जोड़कर हम मुरब्बा बना सकते हैं क्या, हाँ, बना सकते हैं। तो देखिए इसको और ये मुसल्लस को जोड़कर हम मुरब्बा बना सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाँ। क्या इस मुरब्बे में इसमें कितने मुरब्बे हैं और कितने चौकोर हैं। मुरब्बे यानी कि इस चौकोर के 4 ज़िले मसावी लंबाई के, उसे क्या कहते हैं, मुरब्बा कहते हैं। और चौकोर यानी कि 4 ज़िलों वाली शक्ल। अब देखिए ये एक मुरब्बा है और ये एक चौकोर है, तो कितने मुरब्बे हैं, कितने चौकोर है, एक मुरब्बा, एक चौकोर, इस तरीके से। तो आप लोग इसको अपनी दर्सी किताब में हल कीजिए। आगे का देखते, तस्वीर में नुक्तेदार कागज़ पर बनाई हुई शक्लें पहचानो। उनमें से मुसल्लसों में लाल, मुरब्बों में नीला और मुस्ततिल में हरा रंग भरो। अब आपको इसमें शक्लें पहचानना है, मुरब्बा, मुस्ततिल, और उसमें रंग भरना है। जैसे कि यहाँ पर मुसल्लस में लाल रंग भरना है। अब ये मुसल्लस है, इसमें लाल रंग, इसके पहले भी हमने रंग भरे ना, उसी तरीके से। अब आपको इसमें जितने भी मुसल्लस दिखाई देंगे उसमें आपको कौन सा रंग भरना है, लाल रंग, इस तरीके से। ये जितने मुसल्लस दिखाई देंगे, और मुरब्बे में नीला रंग। अब जितने भी मुरब्बे आपको दिखाई देंगे उसमें नीला रंग भरना है, इस तरीके से। और मुस्ततिल में हरा रंग, और जब मुस्ततिल आपको दिखाई देगा वहाँ पर आपको हरा रंग। मुस्ततिल यानी कि 2 ज़िले बड़े और 2 ज़िले छोटे, जैसे कि ये मुस्ततिल है, वहाँ पर आपको हरा रंग भरना है। इस तरीके से। तो आप लोग इसको अपनी दर्सी किताब में हल कीजिए और अपने उस्ताद को दिखाइए। तो यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म होता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।